जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, माउंट टिटलिस देखने के बाद हम ल्यूसान के लिए निकल चुके हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। मुझे तो स्विट्ज़रलैंड से बिल्कुल प्यार हो गया है। और यहाँ देखिए हमारी बस भी जो है वो मर्सिडीज़ बेंज की है। क्या बात है। यहाँ तो हम जब से आए हैं मर्सिडीज़ में ही घूम रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हो या बस हो। और सामने इतना खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है, तो हर तरह के मज़े यहाँ पे मिल रहे हैं। आप भी देखिए कितना प्यारा है ना। ये देखिए एक बहुत बड़ी सी झील है। मुझे भोपाल के अपर लेक की याद आ रही है इसे देख करके। बस के इस तरह बैठी हूँ तो उतना क्लियरली नहीं दिखा सकती हूँ मैं आपको। It is like Mumbai and Delhi, right? So Zurich is like Mumbai of Switzerland, है ना? Zurich, हाँ, वो शॉम बस जा रहे हैं, पोस्टे पोस्टे रह गए। शॉम जा रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉफी माफ। नहीं अभी हम पहुंच जाएंगे। So Bern is the capital of Switzerland. Then you have Zug, Zurich, right? These are another big cities, Lucerne, and these cities have got factories, financial hubs. Lucerne particularly is famous for universities. There are a lot of students from around the world, and it is also famous for banks. तो जो हम लोग स्विस बैंक बोलते हैं ना, काला धन इधर ही है। ठीक है, I'll show you the buildings. अब निकाल के लाना है एक। वो तो अभी तक आया नहीं। इधर ही है भाई। Okay, do you know why the government of Switzerland is not revealing the details of the people who hold accounts in Swiss banks? No. इकोनॉमी उसी से चलता होगा। Yes, yes, you're right. इकोनॉमी उसी से चलता होगा। इकोनॉमी उसी से चलता होगा। Yes, you're very right. तो हम अपने इंडिया में whenever we you have to give the interest to keep your money. जो रखता होगा उसके पास और पैसा होता होगा। And that is why they cannot reveal. Another important thing is this railway station coming up towards your right. This is the biggest railway station in Switzerland, and it is centrally located. Right? From Lucerne, you get train to every part of the Switzerland. And this railway station, this city is centrally located in entire Switzerland. Okay, so the mountain you visited, which mountain is that? टिटलिस। Titlis. And what mountain range? कल से पढ़ के आना सोलो है, टेस्ट है। Alps mountain range. रेलवे स्टेशन है। यहाँ टर्मिनल बना Now, if you could pay attention towards your right hand side, Only. have you ever seen multi-level parking for cycle? Right? को नहीं बोलने गए। ये बस है लेकिन इसमें देखिए ये केबल से चल रही है। अभी बस आगे बढ़ेगी तो देखिएगा। ऐसे दूसरे बसेस भी हैं लेकिन वो प्लेन चलती है। आप इस बस को देखिएगा जो सामने है, केबल से चल रही है। देखिए इसके छत पे लगा हुआ है रॉड जो कि केबल से ऊपर अटैच्ड है। Made over this lake. Further to the left hand side is the river. ये this is the old bridge. So to the left hand side, this water body is river. To the right hand side, this water body is lake. Wherever you see the signboard saying SEEC, it means it is the name of lake. So if you see the signboard saying Lucerne Sea, that means Lucerne Lake. Now to the left hand side, you see chocolatier and Bachmann. Can you see that? Yes. Yeah, this is where you can get the chocolates. आपको अगर स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स खरीदने, you get every brand of Switzerland over there. So now we will get down. Please follow the flag. First we will go to the Lion Monument, and then I will give you an orientation tour of the tour. I will bring you to this chocolate place, right?
and then I will leave you free, so you can orient your town accordingly and come back to the same place. Would that be okay? At what time? 6:45. No. When we have to reach? तो हम स्विट्ज़रलैंड के लुसान सिटी में हैं और यहाँ पे हम लॉयन सेंटर देखने के लिए आए हैं। ये देखिए लायन नहीं लिख करके लॉयन लिखा हुआ है और इसके बारे में बताते हैं कि ये स्विस सोल्जर्स जो कि राजाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे उनके याद में बना हुआ है। हालांकि इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी है, उतनी बड़ी स्टोरी यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बस अभी इसको देखने जाना है। यहाँ भी इंडिया का फ्लैग है, वाह क्या बात है। लायन सेंटर में भी अभी हम लुसान सिटी में है स्विट्ज़रलैंड के और हम जा रहे हैं लायन मॉन्यूमेंट देखने के लिए। इसकी कहानी ये है कि ये उनकी याद में है, उन स्विस सोल्जर्स की याद में है जिन्होंने राजाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी, यानी शहीद हो गए। तो अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डाइंग लायन है, नॉट डेड बट डाइंग। दिस इज द लायन मॉन्यूमेंट। ये लायन मॉन्यूमेंट है। And it happened at the palace of Tuileries, close to Paris. Right? So this King Louis XVI was at the palace of Tuileries when these people came and stormed the palace of Tuileries, and these soldiers died. Right? Here you got to notice few things. See the lion and look into the expressions of lion. Expression देखोगे आप, the lion is not dead yet. The lion is wounded. You see the spear through the body. एक spear गया और टूट गया, right? The lion is wounded and you could see the pain on the face. आप पेन देख रहे हो, आंखें मुड़ी हुई, भौहें सिकुड़ी हुई, right? And he is in deep pain. He is dying lion, and at the same time, just watch the hand, the palm, still protecting the shield, right? So that shield is from the French royal family, and then you have another shield with plus sign that is from Switzerland. So even during his last moment while he is dying, he is still doing his duty and protecting the shield or the dignity of the royalty they were appointed to serve. This is the very famous dying lion monument to show the respect for the martyrs who died during the French Revolution, and those were Swiss soldiers. Okay, please take pictures and then we go into the country. Beautiful, lovely it is. This is the Swiss bank. They have very nice ice creams. If you want to try स्विस ice बैंक cream, जहाँ हम that is the काला धन a देख lovely सकते coffee. हैं, जिसका नाम हमेशा सुनते That is हैं, the place. ये स्विस बैंक। ये है वुडन ब्रिज और इसमें बता रहे हैं कि अंदर में पेंटिंग है और ये है रिवर। इसके उस साइड जो है वो लेक है, इधर रिवर है जैसा हमें बताया गया। और ये है सिटी, लुसान सिटी, लुसान, पता नहीं मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, लुसान। हाँ, Hem de Zambron hem de gehad. हम चॉकलेट शॉप में जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि अगर ख़ुद के लिए चॉकलेट ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद लें, लेकिन अगर इंडिया ले जाने के लिए ख़रीदना है तो हम बेल्जियम से ख़रीदें, जो हम बाद में जाने वाले हैं। क्योंकि स्विस के जो चॉकलेट्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे वहाँ तक, लेकिन बेल्जियम वाले हार्ड होते हैं तो उनको हम ले जा सकते हैं। ख़ुद खाना है तो बोल रहे हैं उतना खाने की मतलब उतनी तो इच्छा नहीं है खाने की, तो अभी देखते हैं। उसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे और
डिनर के बाद फिर वापस होटल जाएंगे। मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो रही है, देखते हैं कब तक चलती है। ये वो दुकान है जहाँ स्विट्ज़रलैंड के सारी तरह के चॉकलेट मिलते हैं। ये देखिए, थोड़ी दूर से दिखलाती हूँ। और हमें सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पे आके वाइन चॉकलेट ज़रूर ट्राई करें, बाकी कोई चॉकलेट खाएं या ना खाएं। चलिए अंदर देखते हैं। कितनी सारी चॉकलेट्स की वैरायटी हैं, मतलब मुझे तो चुनने को कहा जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। और यहाँ पे देखिए लोग जो है वो टोकरी भर भर करके चॉकलेट ले जा रहे हैं। आप देखिए इनकी टोकरी देख लीजिए, इतने चॉकलेट्स लोग खाते कैसे हैं और सिलेक्ट कैसे करते हैं, मैं तो बिल्कुल सही में कंफ्यूज हो जाऊँ। बहुत तरह के चॉकलेट्स और केक्स है यहाँ पे। सचमुच स्विट्जरलैंड की सारी चॉकलेट्स की वैरायटी है यहाँ पे। लिकर हाँ, इसके अंदर डला हुआ है, तुम खा सकती हो। अभी हमारा ताज रेस्टोरेंट में खाना हुआ, तो यहाँ से प्लेटें ले करके यह सैलड, नींबू, अचार, प्याज, हरी मिर्च और इसे दही बोलते हैं, फिटा हुआ दही। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है रोटी और यहाँ चावल, दाल, ये सब्जी है मिक्स्ड, और रसम, पालक पनीर की सब्जी, और यहाँ है चिकन, और ये है फिश, और इसके साथ साथ मीठे में था खीर। तो इतनी वैरायटी आज हमने खाई है, तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा खाना। और हम ल्यूसान सिटी में हैं और वहाँ पे खाना खाया हमने। थोड़ा पानी ज़्यादा पी लें, थोड़ा सा रुक के। और अब यहाँ से हम जाएंगे होटल, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो हमारा डिनर भी हो चुका है, हालांकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:15 साढ़े 7 के बीच हो रहा है, लेकिन डिनर हो चुका। तो अब 1 घंटे के बाद होटल पहुँचेंगे और फिर कल का हमें मिल जाएगा कि कल कहाँ कहाँ जाना है, और उस हिसाब से सुबह की तैयारी करनी होगी। तो अभी के लिए बाय बाय बाय।